Okay, fine. So, in yesterday's class, we studied that there are five main characters to describe a living organism, and these five main characters were growth, reproduction, metabolism, cellular organization, and consciousness. So, yesterday we studied that growth and reproduction, these are the main characters, but these are not the defining properties or characters or features of an living organisms. Now, there was a question why these are not the defining properties, because इन दोनों कैरेक्टर्स के अंदर में कोई ना कोई एक्सेप्शंस थे, जो मैंने लास्ट क्लास बताया आपको। ग्रोथ में भी एक्सेप्शन है, बिकॉज ग्रोथ एक्सट्रिंसिक भी हो सकती है, तो वो हमारा एक्सेप्शन जा रहा है। रिप्रोडक्शन में है, स्टेराइल कपल्स हैं, वर्कर बीज हैं, तो वो एक्सेप्शन है। इसीलिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो दो कैरेक्टर्स हैं, उनको हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज या कैरेक्टर्स में नहीं रखते लिविंग बीइंग के। The other three characters, those are like metabolism, cellular organization, and consciousness. These three characters are the basically the defining characters of a living creature. Okay, fine. We studied what was growth. Growth was the like increase in size or mass or overall growth of an organism was called as growth. Growth were of two types: intrinsic growth and extrinsic growth. So we called intrinsic growth the growth which occurs from inside the body, like growth in the cell or the tissue is known as the intrinsic growth. Now, extrinsic growth was the growth from outside of the body, was the extrinsic growth. Now, reproduction. In reproduction, we studied like production of new individual or progeny was called as reproduction. Now, reproduction can occur in unicellular organisms, also in alga or amoeba, or in bacteria also, where only single cell is there. And in that amoeba, nuclei will divide, then a daughter cell will be formed. So likewise, or in multicellular organisms, mitosis will occur, or some cellular fusion will occur, and then the growth will happen, then the reproduction will happen. Now, reproduction is a character which is not defined in any non-living organism, but in living organism also there are some exceptions, such as mules or sterile human couples or worker bees. So we considered that reproduction is not a defining creature, feature, or a characteristics for a living organism. Now we studied that reproduction is of two types. That was the asexual reproduction and sexual reproduction. We had various ways for asexual reproduction, such as asexual spores, budding, fragmentation, true regeneration, and much more. And there was, okay, yesterday I taught you that true regeneration can be a true regeneration, which was also called as morphollaxis type, or it can be a regeneration is also a false type of regeneration, which is called as epimorphosis type, which usually occurs in starfish and lizards, where they repair their lost body part through regeneration. Now, reproduction can also be done through sexual reproduction, in which we need a male gamete and a female gamete, and then fusion of these gametes will occur, and then fertilization will take place. So, this was all about yesterday's class. Now, we'll start with our today's class. So, we studied about the two main characters, that was the growth and reproduction. So today we'll be continuing with our third character, which is metabolism. Now, what is metabolism? So metabolism is a sum total of the chemical reactions occurring in our body. Now, what there are various types of chemical reactions that occurs inside a individual's body, whether it be a human being, whether it be any animal or any plant. Everybody uh, is having certain amount of chemical reactions occurring in their body. So
मेटाबॉलिज्म में क्या करते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी में, वेदर इट बी अ स्मॉल केमिकल रिएक्शन या फिर कुछ बड़ा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं एक इंडिविजुअल की बॉडी में, उन सब का सम टोटल जो होता है उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. ना जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, दोनों के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है. या तो वो एक सिंगल सेल का अमीबा हो, या एक बैक्टीरिया हो, या फिर ह्यूमंस हो, कोई एनिमल हो, हर किसी के अंदर मेटाबॉलिज्म होती ही होती है, डिस्पाइट दैट क्रिएचर इज अ यूनिसेलुलर और अ मल्टीसेलुलर. नाउ नो लिविंग नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शोज मेटाबॉलिज्म, यानी कि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होती है. सो दैट इज द रीजन कि मेटाबॉलिज्म को हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई ऐसा क्रिएचर नहीं है इस पूरे प्लानट में जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही हो. सो इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग कैरेक्टर बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म को. नाउ ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, फंगाई है, माइक्रोब्स है, सबके अंदर मेटाबॉलिज्म होती है. Now, the isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither. Okay, you people have heard about in vitro fertilization और in vivo fertilization. यानी कि जो एक जो ओवरी के ओव्यूल्स होते हैं उसको हम लोग ले करके और मेटाबॉलिज्म मतलब उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर रिप्रोडक्शन करवाते हैं, उसके अंदर भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं. इसीलिए उसको भी हम लोग उसमें कंसिडर करते हैं कि उसके अंदर भी वो लिविंग और नॉन लिविंग नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं. इसीलिए ये जितने भी आइसोलेटेड रिएक्शंस हम लोग करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, लैब्स में जो रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, उसको भी हम लोग लिविंग थिंग्स नहीं बोलते हैं, लेकिन उनको लिविंग रिएक्शंस बोल सकते हैं हम लोग, बिकॉज दे आर सिमिलर टू द रिएक्शंस परफॉर्मिंग इन आवर बॉडी. क्योंकि वहां भी डेवलपमेंट तो हो रही है, इम्ब्रियो बन रहा है, फीटस वो बनेगा ही बनेगा, तो उसके अंदर वो केमिकल रिएक्शंस हो रही है. इसीलिए जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, सेम केमिकल रिएक्शंस जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है, वही केमिकल रिएक्शंस हम उस टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर भी कर रहे हैं. तो इसीलिए उसको भी हम लोग लिविंग रिएक्शंस ही बोलते हैं. नाउ एक चीज और है यहाँ, वी शुडंट फॉरगेट कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो टोटल सम होता है केमिकल रिएक्शंस का. सो कीप इन माइंड वन थिंग कि जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सम टोटल होता है, ना ही कि सम ऑफ फ्यू और मोर लिविंग रिएक्शंस. ये नहीं कि दो चार केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनके सम को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. जो पूरी बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, स्मॉल से लेकर के लार्ज केमिकल रिएक्शंस, सबके सम टोटल को कलेक्टिवली हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. ठीक है, अभी ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ मेड अप ऑफ स्मॉल और बिग केमिकल्स. अब अमीबा है तो उसके अंदर ज्यादा बड़े केमिकल्स तो नहीं होंगे, स्मॉल सा केमिकल होगा, बट वो भी मेटाबॉलिज्म कर रहा है अपने लेवल पे. ह्यूमंस हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो बिग केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे हैं. Now, these chemicals perform thousands of reactions and form some other chemicals also in the bodies of living reactions. अब ये जो केमिकल हैं वो अपने लेवल पे थाउजेंड्स लैक्स में केमिकल रिएक्शंस करते हैं, और फिर दूसरे केमिकल्स भी बॉडी में प्रोड्यूस करवाते हैं. हमारी ही बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं और फिर दूसरे केमिकल्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी बॉडी में. For all plants, animals, fungi, and microbes exhibit metabolism. This is clear. Now, metabolism can be of two types, anabolism or catabolism. In yesterday's session, I told you. Now, what is anabolism? Anabolism is the addition of
In anabolism, addition is happening, and in catabolism, breakage is happening, breakdown is happening. But collectively, जब मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं हम लोग, तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों को हम लोग उसमें कंसिडर करते हैं। यानी कि बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं जिसमें ऐड भी हो रहा है उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे, और जो ब्रेकडाउन हो रही है जिस रिएक्शंस में, उस रिएक्शन को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। Now, the fourth characteristic was our cellular organization. Now, as we all know, that cell is the basic unit of life. जो एक इंडिविजुअल बॉडी में, किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो सेल होता है। चाहे वो एलिफेंट हो, जिराफ हो, और अमीबा हो, या एक स्मॉल बैक्टीरिया हो, कोई एल्गी हो, कोई फंजाई हो, सबके अंदर सेल प्रेजेंट होगा। टिश्यू प्रेजेंट हो या नहीं हो, टिश्यू प्रेजेंट हो या नहीं होगा, लेकिन सेल उसके अंदर प्रेजेंट होगा, क्योंकि सेल सबसे बेसिक यूनिट है। एंड नाउ व्हाट इज टिश्यू? तो टिश्यू हो गया हमारा वो चीज, एक बंडल ऑफ सेल्स जो कंबाइन करते हैं तो वो टिश्यू बनाता है। सो स्मॉल क्रिएचर्स में, जैसे बैक्टीरिया हो गए, अमीबा हो गया, कुछ फंगाई हो गए, उनमें टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन सेल जो है वो हर एक इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होता है, चाहे वो इंडिविजुअल एक सिंगल सेल का ही क्यों ना बना हो। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. Some are composed of a single cell, as I told you, for example in a, so amoeba. So these creatures which are composed of a single cell are called as unicellular organisms, while other like us composed of many cells are called multicellular organisms. For example, uh, creatures like us, any animal, any plant, these are called as multicellular organisms. Now, unicellular organisms are capable of independent existence and performing essential functions of life. नाउ यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर लेते हैं। दे डोंट नीड एनीबडीज सपोर्ट, दे डोंट नीड एनीबडीज हेल्प टू परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन। जो उनके लाइफ की बेसिक फंक्शंस होती है वो उसको खुद को फुलफिल कर लेते हैं। हर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फुलफिल कर लेता है उस क्राइटेरिया को। उनको बेसिक फंक्शनिंग करने के लिए किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। दे डू नॉट नीड एनी सपोर्ट टू परफॉर्म द बेसिक फंक्शंस ऑफ देयर लाइफ। Now, anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. यानी कि अगर एक सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बना हो तो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं होती है किसी क्रिएचर की। इसीलिए सेल को हम लोग जो बोलते हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो एक सेल स्ट्रक्चर के बिना अपनी लाइफ को पोजेस कर लेगा या अपनी लाइफ को एग्जिस्ट भी कर पाएगा इंडिपेंडेंटली। नो, दे कांट डू इट। सो जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंगल सेल भी प्रेजेंट नहीं है, वो ऑर्गेनिजम्स लिविंग कंसीडर ही रहेंगे, उनको नॉन लिविंग के क्राइटेरिया में रखेंगे हम लोग, उनको लिविंग नहीं बोल सकते हम लोग। सेल होता है वो हमारा फंडामेंटल, किसी के भी इंडिविजुअल की बॉडी का फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है, फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। चाहे वो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो, चाहे वो ऑर्गेनिज्म कोई एल्गी हो, फंगाई हो, प्लांट हो, एनिमल हो, डजंट मैटर। हर एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर, फंक्शनल यूनिट सेम होता है। So this Yes, Malvika.
सो या हियर वी पे किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की का बेसिस ही एक सेल पे डिपेंडेंट होता है. किसी भी इंडिविजुअल का, वेदर इट इज अ फंगाई, वेदर इट इज अ algae, वेदर इट इज एन बैक्टीरिया और अ प्लांट और एनिमल, हर एक इंडिविजुअल, हर एक क्रिएचर जो इस प्लानट पे एग्जिस्ट करता है, उनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेल होता है, उनका फंक्शनल यूनिट भी सेल होता है. So in this way, cellular organization is proved to be defining property of all living यूनिट बोलते हैं. ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म का. सो राइट नाउ वी हैव सीन दैट वी स्टडीड टू डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. These were the metabolism and cellular organization. Now moving to our last defining property, which is consciousness. So what is consciousness? So consciousness is ability to sense the surrounding environments and respond to these environmental stimuli is called as consciousness. Now consciousness क्या होती है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कॉन्शियस कब बोलते हैं? जब कोई क्रिएचर के पास सेंस प्रेजेंट हो, वो उनके सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो उस चीज को सेंस कर पाए, और उसको सेंस करके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर पाए इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई जो भी हमारे सराउंडिंग में हो रही है. तो उस चीज को हम लोग कॉन्शियसनेस बोलते हैं. एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग एनवायरमेंट्स एंड रिस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस. So we sense these physical, chemical, or biological stimuli through our sense organs. Everybody has a sense organ. सिर्फ ह्यूमंस या एनिमल्स के पास ही सेंस ऑर्गन्स नहीं होती है. सेंस ऑर्गन्स हर ऑर्गेनिज्म के पास होती है. हर एक ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई प्रेजेंट होती है उसको सेंस कर सकता है, चाहे वो फिजिकल स्टिमुलाई हो, या कोई केमिकल स्टिमुलाई हो, या कोई बायोलॉजिकल स्टिमुलाई हो. हर एक इंडिविजुअल इन सारी जो हमारी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई प्रेजेंट होती है उनको सेंस कर सकता है. नाउ वी सेंस प्लांट्स. Plants also sense and respond to external factors like light, water, temperature, other organism, pollutants, etc. ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एनिमल्स ही इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई या एक्सटर्नल फैक्टर्स को सेंस करके रिस्पॉन्ड कर पाते हैं अकॉर्डिंगली. प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं, प्लांट्स भी कॉन्शियस होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है ना. प्लांट्स जैसे कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है, लाइट को देख करके, वाटर को देख करके, टेम्परेचर को देख करके, या कोई अदर ऑर्गेनिज्म, अदर क्रिएचर्स उनके ऊपर आ रहे हैं, या पॉल्यूटेंट्स भी आ रहे हैं, प्लांट्स उनको देख करके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर पाते हैं. जैसे आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल पिच्चर प्लांट है, अगर कोई भी इंसेक्ट उसमें जाता है तो वो ट्रैप कर लेता है उसको, वो रिस्पॉन्ड कर पाता है, तो उसके अंदर सेंस है तब तो वो रिस्पॉन्ड कर पा रहा है. या आप देखोगे टच मी नॉट प्लांट है, उनको आप कभी टच करके देखो, वो तुरंत से ऐसे सॉरी गाइस, वो तुरंत से ऐसे खुद को सिकोड़ लेते हैं, उनकी बॉडी मुरझा जाती है, तो वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को लेकर के. बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, जैसे सनफ्लावर हो गया, जहाँ सन की मूवमेंट होती है, जहाँ सन की लाइट आती है वो अकॉर्डिंगली उस साइड मूव करता है, वो अकॉर्डिंगली उस साइड ही ब्लूम करते हैं. तो प्लांट्स भी सेंस कर सकते हैं, प्लांट्स के अंदर
eukaryotes to complex eukaryotes, so consciousness to environmental cues. चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या प्रोकैरियोट्स हमारा हो गया जिसके अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं हमारे, वो भी कॉन्शियसनेस शो करते हैं। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है, यूकेरियोट्स, जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, जिसके अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, जिसके अंदर डिफरेंट डीएनए आरएनए स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, वो भी कॉन्शियसनेस शो करते हैं इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के अगेंस्ट। नाउ दीज थिंग्स आर कॉन्शियसनेस। सो हर एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस शो कर सकता है सिर्फ, whether it be a plant, whether it be है। नाउ मार्क दिस, सेल्फ कॉन्शियसनेस जो प्रेजेंट में भी प्रेजेंट नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के अंदर ही प्रेजेंट होती है। Okay, so when human is concerned, so what is self consciousness? So when human is जो ह्यूमन बींग्स जिनके अंदर नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत वेल डेवलप्ड है, इसीलिए ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं कि सेल्फ कॉन्शियसनेस पोजेस करते हैं। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं सिर्फ वो सेल्फ कॉन्शियसनेस पोजेस करते हैं। ह्यूमन बींग्स बहुत जल्दी से रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट। इवन it can and even it can think or predict about possible changes of surroundings, यानी कि सराउंडिंग में क्या चेंज होने वाली है हम लोग वो भी सोच सकते हैं, हम लोग वो भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं और खुद को हम लोग उस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर पाते हैं। जैसे मान लो धूप नहीं दिख रही है हमें बाहर, तो वी नो, अभी जैसे मान लो कोल्ड का सीजन है, हमें सन नहीं दिख रहा है, तो हमें पता है कि अच्छा ठीक है आज टेम्परेचर गिरेगी। हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं उस चीज को, हम सेंस कर पा रहे हैं, थिंक कर पा रहे हैं, और हम लोग अकॉर्डिंगली खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है ठंड होने वाली है अभी, तो ओके वी नीड बॉडी वार्मर्स, वी नीड जैकेट्स। तो हमारे अंदर वो एबिलिटी है कि हम लोग थिंक कर पा रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं और फिर खुद को प्रिपेयर भी कर ले रहे हैं अकॉर्डिंगली। तो दैट्स व्हाई ह्यूमंस are said that human being can even change in surrounding situations up to a limit. So this topmost or climax level of consciousness is regarded as self consciousness, which cannot be seen elsewhere. These kind of consciousness cannot be seen in any animal, in any plant. Now so self consciousness is thought to be present in plant. Now एक और इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, वन थिंग आई ऑल्सो वांट टू टेल यू पीपल, कि जैसे मान लो कोई पेशेंट है, उसका ब्रेन डेड हो गया है, पेशेंट इज इन कोमा, पेशेंट कोमा में चला गया है, पेशेंट इज जस्ट लाइंग ऑन बेड, पेशेंट हमारा कोमा में है, पेशेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है, पेशेंट कोमा में चला गया है, उसके चारों तरफ सिर्फ मशीन्स प्रेजेंट है, उसके अंदर मान लो हार्ट और लंग्स रिप्लेस करे, लेकिन उस पेशेंट के अंदर भी कॉन्शियसनेस होती है। दो पेशेंट इज इन कॉमा, बट उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं, उसके अंदर कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है, इसीलिए उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसिडर करते हैं। हाँ, ऑल्दो उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट नहीं होती है। जो ब्रेंडेड पेशेंट्स हैं जो कोमा में चले गए, जिनका ब्रेन फंक्शन करना स्टॉप कर दिया है, कोमा में चले गए हैं, हॉस्पिटल में है, बेड पे जस्ट लेइंग ऑन बेड, वो पेशेंट्स कॉन्शियस होते हैं, बट उनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट नहीं होती है। बट कॉन्शियसनेस होती है तो उनको भी हम लोग लिविंग बोलते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होगी उनके अंदर, वो
बाकी ह्यूमन बींग्स की तरह तुरंत में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। अपना कोऑर्डिनेशन वो खो देते हैं, क्योंकि हम लोग सेल्फ कॉन्शियसनेस क्यों बोल रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि उसके अंदर नर्वस सिस्टम बहुत डेवलप्ड है। बट जो ब्रेन डेड पेशेंट्स हो जाते हैं उनके अंदर क्या होता है कि बॉडी से आधा फंक्शंस, आधा ऑर्गन्स जो होता है वो कोऑर्डिनेशन बंद कर देता है, आधे बॉडी पार्ट्स कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं आपस में, नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं फंक्शन नहीं कर रहा है ढंग से, इसलिए उस पेशेंट्स के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन वो पेशेंट्स भी कॉन्शियस होता है। That means कि all the living phenomena are due to underlying interactions between different components of an individual और organ और tissue और cell। यानी कि जो इंटरैक्शन हो रही है डिफरेंट सेल्स की, डिफरेंट टिश्यूज की, वो सब लिविंग बींग्स के अंदर में ही हो रही है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होता है हमारा, अभी जितने भी कैरेक्टर्स पढ़े हमने, उस बेसिस पे हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जो हमारे लिविंग क्रिएचर्स होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इवॉल्व होते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, उनके अंदर सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम होती है, और वो केपेबल होते हैं कि वो एक्सटर्नल स्टिमुली रिस्पॉन्ड कर सके। Adaptive immune classes are also very important characters of living. Living beings accordingly अपने आप को किसी भी सिचुएशन में अडाप्ट कर लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स होम्योस्टेसिस परफॉर्म करवाते हैं, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स बट जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग बींग की कि वो अपने जैसा और रेप्लिका बना सकते हैं, यानी रिप्रोडक्शन हो रही है, इवॉल्व भी होती है, क्योंकि उसमें हर कुछ एनिमल्स में इवोल्यूशन तो एनिमल्स में हो ही रहे हैं। यूनिसेलुलर के अंदर इवोल्यूशन नहीं आ रही है, वो बस ग्रो कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने जैसा इंडिविजुअल बना रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं, रेप्लिका बना रहे हैं। लेकिन बाकी जो एनिमल हैं, वो आ रही है। So that is all about the chat about living organisms. Living within many taxonomies. So tomorrow's class will be studying about the nomenclature and the rules of nomenclature, how we what are the rules, what are the criteria. So let's just quickly recap about. So we studied at a living world, we basically about different non-living organisms, other creatures, what are at cellular level. We to define a living being, there are main basic five characters: growth, reproduction, metabolism, cellular organization, and consciousness. Now, we said that growth and reproduction are not the defining properties or features because they have exceptions in them. Then we studied that metabolism, cellular organization, and consciousness are the defining characters because they don't have exceptions in them. Growth was our increase in mass or overall size of a tissue or organism was called as growth. Then we studied that growth दो types के होते हैं. Intrinsic growth होता है inside the body of living organism. Extrinsic growth होता है outside जो body के होता है. फिर growth अनलिमिटेड ग्रोथ भी हो सकती है, लिमिटेड ग्रोथ भी हो सकती है. Then there was second character production, जिसमें कि न्यू इंडिविजुअल बनते हैं, आगे जाती है, अपना एक रेप्लिका, अपनी एक कॉपी प्रिपेयर करता है, एंड द लाइफ गोज ऑन. सो रिप्रोडक्शन दो टाइप की होती है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन होती है, होती है.
Then sexual reproduction, so we know that fertilization होगा, meiosis होगी, sexual reproduction will occur. प्रॉपर्टी हमारी हमारी वो सम टोटल होती है केमिकल रिएक्शन चौथी जो हमारी डिफाइनिंग फैक्टर थी वो ऑर्गेनाइजेशन थी बेसिक ऑर्गेनिज्म अंदर सेल प्रेजेंट होती है सेल होता है हमारा वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म then so do करता है so that is called as